Hello student, welcome to your class 11th biology class, in which today we learn about different classes, that is class Amphibia, class Reptiles, class Aves and class Mammalia. In last video we discussed about the classes of species. There are the three classes in order species. Now we'll read about the different classes and I hope you have enjoy or you have the fun to read these classes, because these classes are very interesting characteristics. They have the very interesting characteristics. So let us start one by one. We read these classes and their characteristics. First one, class Amphibia. Amphibia, it is made up of two words, that is amphi, that means both, and dual, bios, that means life. So those organisms that live in the terrestrial environment as well as in the aquatic environment comes in the class of Amphibia. So we can say them उभयचर. ऐसे जीव जो स्थल और जल दोनों जगह आसानी से रह सकते हों उन्हें हम कहते हैं उभयचर प्राणी. और we can say they are known as the amphibians because they live in aquatic environment as well as in the terrestrial environment easily, but when they reproduce they go into the aquatic environment. For the reproduction it is essential characteristic for them. Next, their skin is moist with scales and divided into two parts. First one is the head and second part is the trunk. इन एनिमल्स की जो बॉडी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द ब्लेनोग्लॉसस that their body is divided into three parts: proboscis, collar and tail region or trunk region. But in the class Aves or class Amphibia, the body is divided into two parts, that is the head and the trunk. Next, eyelids are present to save them when they remain into the aquatic environment. Ear opening is represented by the tympanum. External ears are not present in these animals. External ears नहीं present होते हैं इनकी body में, just like us we have the external ears. So ears के इनके लिए क्या होते हैं, एक special characteristic present होता है, एक special structure present होता है, that is called tympanum. Now because they are the amphibians, so they respire through the lungs as well as through the gills. That means when they remain in the larval stage they respire through the gills, but when they become adult they respire through the gills. जब वो छोटे होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तब वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं क्योंकि वो जल में रहते हैं. लेकिन जब वो अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. बट समटाइम्स दे ऑल्सो रेस्पायर थ्रू दी देयर स्किन्स. वो अपनी स्किन्स के से भी रेस्पायर करते हैं. इसीलिए ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, दीज एनिमल्स ऑल्सो नोन एज द क्यूटियस रेस्पायरेटरी एनिमल्स. क्योंकि स्किन जो है वो कैसी होती है, इनकी बहुत ही क्यूटियस टाइप होती है, इसलिए दे आर नोन एज द क्यूटियस रेस्पायरेटरी एनिमल्स. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दैट आई टोल्ड यू, दैट इज first one, we have different opening for the different system, just like for digestive system we have the mouth, for excretion we have the anus point, for reproduction we have the testis and the ovaries in our body. But in amphibians they have a single opening for the digestion, for the excretion and for the reproduction, that is known as the cloaca. Okay. नेक्स्ट, दे आर दी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. डेट मीन्स वो अपने बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड. डेट मीन्स दे हैव टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, eggs covered in a thin shell structures that break down in the sunlight because they lay their eggs in the water. वो अपने जो लेज हैं, एग्स हैं, उनको वाटर में ही छोड़ते हैं. अगर वो अपने वाटर एग्स को टेरेस्ट्रियल लैंड पर छोड़ेंगे तो उनके जो एग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके एग्स के सराउंडिंग क्या पाई जाती है, एक थिन शेल पाई जाती है. थिक शेल होती तो वो नहीं ब्रेक हो पाते, लेकिन थिन शेल होने की वजह से सनलाइट से
उनके जो एग्स हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, इसलिए वो अपने एग्स को वाटर में ही, एक्वेटिक मीडियम में ही रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? बुफो डेट मीन्स टोड, राना टिग्रिना डेट मीन्स फ्रॉग, एंड हाइला डेट इज मीन्स ट्री फ्रॉग। एंड एक अनदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देम that they have the a net like structure in their fingers। उनकी जो फिंगर्स होती हैं उनके बीच में नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, वो इजीली अटैच कर लेते हैं अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेट से। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लास रेप्टिलिया, reptiles। Reptiles, it is also made up of two words. First one is the ripari and second one is the reptum। Ripari that means to creep and reptum that means crawl। That means those organisms that have the ability to creep on any land are known as the reptiles। Okay, जो ऐसे जीव जो रेंग कर चल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी उन्हें हम सरीसृप वर्ग में रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज द मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कम इनटू दिस। अभी तक हमने कैसे पढ़े थे? ऐसे एनिमल्स जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो केवल और केवल कहाँ रह सकते हैं? टेरेस्ट्रियल लैंड पर रह सकते हैं। सो मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, सेकेंड वन, स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद कॉर्निफाइड बट एपिडर्मिस बियर स्केल्स और स्क्यूट्स हेल्प इन क्रीपिंग। दैट मीन्स ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी जो है वो कुछ स्केल्स से कवर्ड रहती है, जस्ट लाइक स्पाइंस। यू कैन सी दी स्ट्रक्चर ऑफ लिजर्ड एंड कैमिलियन। कैमिलियन की बॉडी पर क्या देखते हैं आप? थोड़े से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं और वो स्ट्रक्चर्स उनकी हेल्प भी करते हैं फॉर द क्रीपिंग। दैट मीन्स रेंग कर चलने के में भी उनकी वो हेल्प करते हैं वो स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, external ears are not present, tympana represent the ear। next, these their eggs have a thick shell। उनके जो eggs होते हैं वो covered रहते हैं thick shell के अंदर, जिससे कि वो easily break ना हो सके, and become dry, और dry भी रहते हैं उनके shells। एम्फीबिया में thin shell थे, यहाँ पर reptiles के अंदर जो eggs हैं वो covered रहते हैं with the help of a thick shell। Next point that is important, show the character of echidiasis। Echidiasis means they remove their dead skin time to time। as you hear from your elders, आपने अपने घरों में सुना भी होगा कि सांप जो है वो समय समय पर क्या करता है? अपनी केचली छोड़ता है, यानी अपनी जो खाल है उसको छोड़ देता है, निकाल देता है। इसी तरह जो लिजर्ड है वो भी इस कैरेक्टर को शो करती है। और ये जो कैरेक्टर है कि दैट मीन्स एनिमल्स remove their skin time to time is known as the echidiasis that are shown in the lizard and the snakes। next, show camouflage nature। that means camouflage nature, that means they change their body color। गिरगिट, आपने सभी ने उसका नाम सुना होगा। गिरगिट की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। वो जिस पर भी बैठती है, जिस भी एनवायरनमेंट में रहती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप की बॉडी के कलर को चेंज कर लेती है। तो दैट कैरेक्टर इज नोन एज द कैमोफिलिटिच। नेक्स्ट, द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड। जो आपके रेप्टाइल्स हैं दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, दैट मीन्स टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स, बट एक्सेप्शन इज प्रेजेंट हियर, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट लाइक अस। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट मीन्स टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं? टॉर्टॉइस, टर्टल्स, कोबरा, वाइपर, कैमिलियन, स्नेक्स, एक्सेट्रास। नाउ we discuss about our third class, that is class aves। Aves, as you know about their name, aves, that means all birds that have the capability for flying comes into this class। So aves, they have feathers on their skins for flying and beak for eating the food। next, forelimbs are modified into the wings। in animals there are two structures are present, forelimbs, that means जो अग्रपाद होते हैं, आगे की तरफ होते हैं जो, उन्हें हम कहते हैं forelimbs। जो पीछे की तरफ होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिंड लिम्स, that means
हमारे जो हैंड्स हैं दीज आर फोर लिम्स, वो फोर लिम्स के मॉडिफिकेशन में आते हैं। और जो हमारे पैर हैं दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ हिंड लिम्स, वो हिंड लिम्स का मॉडिफिकेशन है। जस्ट लाइक फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन एवीज into the wings and hind limbs are modified for walking, swimming and collapsing the tree branches। आप सभी जानते हैं जो बर्ड्स हैं वो इजीली किसी भी ब्रांच पर अटैच हो जाती हैं, होल्ड कर लेते हैं अपने आप को किसी भी ब्रांच पर इजीली। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उनके हिंड लिम्स वहाँ पर अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, इसीलिए वो इजीली किसी भी ब्रांच पर अटैच हो जाती हैं। नाउ ऑयल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन देयर बेस ऑफ टेल, उनकी टेल जो होती है उसके बेस पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं डेट सिक्रीट द ऑयल लाइक सब्सटेंस विच आर नोन एज द ऑयल ग्लैंड्स। नेक्स्ट यू ऑल नो अबाउट डेट, जो चिड़ियाँ हैं वो आसानी से उड़ लेती हैं। क्यों उड़ लेती हैं? बिकॉज दे हैव द होलो बोन्स, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, और उन्हीं हड्डियों के होलो होने से दे हैव द लाइट वेट ऑफ बॉडी, उनका शरीर का जो वजन है वो कैसा हो जाता है? बहुत हल्का हो जाता है, इसीलिए वो इजीली क्या हो जाती हैं? वो उड़ सकती हैं। दे कैन इजीली फ्लाई इन द स्काई। सो दे हैव द होलो बोन्स विद एयर कैविटी, सो देयर बोन्स आर नोन एज द न्यूमेटिक बोन्स। उनकी बोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। एक्सेप्शंस आर कीवीज एंड ऑस्ट्रिच, कीवी और ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग और कीवी ये दो ऐसी बर्ड्स हैं दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव द हैवी बॉडी वेट, क्योंकि उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसीलिए वो नहीं फ्लाई कर पाती हैं। स्पेशल कैरेक्टर इज दैट दे हैव ए वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज डिवाइडेड इनटू दी 2 चैम्बर्स। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द क्रूप एंड सेकेंड वन इज द गिजर्ड। इनका भी अपना फंक्शन है। क्रूप डेट स्टोर द फूड, वो इस फूड को स्टोर करता है। गिजर्ड इट ग्राइंड द फूड, वो ग्राइंड करता है। जैसे आप मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, डेट मीन्स छोटे छोटे पीसेस में फूड को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से आप फिर उसको इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से इनकी जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स फ्रूट्स खाती हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स खाती हैं, तो ये थोड़ी है कि वो सीधा उसको खा लेंगी, वो भी पहले उसको क्या करती है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दैट इज गिजर्ड। गिजर्ड वो काम करता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट दे आर द वार्म ब्लडेड, दैट मीन्स दे हैव द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, दे मेक देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वो किसी भी एनवायरनमेंट में, आपका ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है या ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो टेम्परेचर है उसको क्या कर लेती हैं? कांस्टेंट रख लेती हैं, जस्ट लाइक अस। सो दिस टर्म इज नोन एज द होम्योथर्मस। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या कह के पुकारते हैं? दैट इज होम्योथर्मस एनिमल्स। नाउ दे ऑल्सो हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हमारा लास्ट हमने जो रेप्टाइल्स क्लास पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 3 चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन एक्सेप्शन वहाँ स्टार्ट हो गया था, दैट इज अ क्रोकोडाइल, कि उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट था। अब हमारा जो क्लास एवीज है उसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था एनिमल्स के अंदर। एग्जांपल्स क्या हैं? क्रो, पिजन, पैरट, पीकॉक एक्सेट्रा। एंड वन पॉइंट इज दैट इज स्मॉलेस्ट बर्ड। कौन सी है स्मॉलेस्ट बर्ड? दैट इज द ह्यूमिंग बर्ड। सबसे छोटी चिड़िया क्या कहलाती है? उसका नाम क्या है? ह्यूमिंग बर्ड। नाउ वी रीड और डिस्कस अबाउट द लास्ट क्लास, दैट इज द मैमेलिया। मैमेलिया व्हाट इज दैट? आप सभी जानते हैं वी आर द मैमल्स, दैट मीन्स वी हैव द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड दैट मीन्स इट द ग्लैंड्स विच सिक्रेट्स द मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क को सिक्रेट करती हैं, जिसके थ्रू जो एनिमल्स हैं वो अपने यंग वंस को यानी अपने बच्चों को नरिश करते हैं, उनको फूड देते हैं। They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, flying, burrowing, etc. जो मैमल्स हैं उनके अंदर अब क्या होने लगे थे? जो हिंड लिम्ब थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कर चुके थे, अडेप्टेड कर चुके थे फॉर द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। आप यू कैन सी योर स्किन, सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन योर बॉडी, so it is a special characteristic of mammals.
नेक्स्ट एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड पिन्नेई। पिन्ना कहते हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर्स के तरह प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज that different types of teeth are present in the mouth, just like incisor, canine, premolars and molars. We have different type of teeth. Okay, now respiration through lungs. Heart is 4 chamber, 2 auricles and the 2 ventricles. And homeothermus, that means we remain our body temperature constant. कैसा भी एनवायरनमेंट हो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, डेट इज द 37 डिग्री सेल्सियस। एंड वी आर विविपेरस। विविपेरस डेट मीन्स वी गिव बर्थ टू यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, दे आर नॉट ओविपेरस। वो ओविपेरस नहीं है, डेट मीन्स वो अंडे नहीं देते हैं। क्या आप अंडे देते हैं? नहीं ना। तो वी आर द विविपेरस। बट एक्सेप्शन इज हियर, यहाँ भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, डेट इज पेरिप्लेटस। पेरिप्लेटस इज द ओनली मैमल डेट इज द ओविपेरस। आपका पेरिप्लेटस ही ऐसा मैमल है जो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंडे देता है। ऑल द मैमल्स गिव आर द विविपेरस। ओके, एग्जांपल्स आर monkey, chimpanzees, human, etc. Hope you have fun to read these classes different, and with these classes we complete our chapter 4. Please learn these characteristics, remain one example in your mind so that you easily learn them and draw the structure of these different classes animals in your fair notebooks. Thank you class, thank you so much.